Hi everybody, this is Rashmi and today's video we are going to discuss some important Java pattern programs. Patterns are always asked in your board examination. So in my first video we are going to discuss three patterns. These three patterns are the very basic pattern programs and you can easily know how to make it. Let's start with the first very basic program. This is your right angle triangle. As you can see, this is a complete right angle triangle where you can see the number of rows are 4 and the number of columns are 4. Alright, the horizontal lines are known as number of rows and the vertical lines are known as number of column. So as you can see, now the very first question come in your mind whenever you see the pattern over here. That means for pattern, which technique we should use to make this pattern. First and foremost, you must remember the looping concept. Before starting the pattern program, you must go through the looping concept, means the for loop. You must aware about the for loop and for loop as well as nested looping. Alright, so we have two important keys over here, number of rows and number of column. Accordingly, we will make this program. Here, the number of rows are 4 and the number of columns are 4. So, let's start with this code. First, you have to be write the class name and then we will make a main method. After that, we will run the for loop. This for loop will basically work over the rows. Alright, as we know, the row values are 4. So, we will run the loop for 1 to 4. That means all rows 1 by 1. All the horizontal rows 1 by 1. And then inside this row loops, we will run the column loop. Column loops also are for 4, but as you can see the column value is dependent on the row value. मीन्स अगर रो 1 है तो कॉलम भी 1 है, रो 2 हो जाती हैं तो कॉलम 2 जनरेट हो जाते हैं, रो 3 है तो 3 कॉलम जनरेट हो जाते हैं. दैट मीन्स कम्प्लीटली द रो वैल्यू इज डिपेंडेंट, सॉरी, कम्प्लीटली द कॉलम वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन row value. So in this loop we must understand the condition. Let's start this j value. J will represent over here number of columns, so it will start from 1 and the condition will go till j less than equal to i. That means j की वैल्यू आपकी i पे डिपेंड कर रही है. जैसे जैसे आपकी i की वैल्यू बढ़ी है वैसे वैसे आपकी j की वैल्यू, यानी नंबर ऑफ rows are dependent on number of columns. Now the most important part is what we are going to write inside this loop. क्या लिखने वाले हैं, क्या हमें प्रेजेंट करना है. एज यू कैन सी इन फर्स्ट रो यू विल गेट 1, इन सेकेंड रो यू विल गेट 1 and 2. Alright, yani 1 is a column number 1, 2 is column number 3. Now in third row you are presenting 1, 2, 3. That means column 1, column 2, column 3. So basically after this जितना भी हमने समराइज किया उसका कंक्लूजन ये निकल के आता है, जो वैल्यू प्रिंट हो रही है वो कॉलम की प्रिंट हो रही है. सो इन दिस केस व्हाट वी आर गोइंग टू प्रिंट, वी आर going to print j value. All right, so we will write system.out.println in bracket j. Here the j is column value and then we give a little space so कि आपके words जो numbers हैं वो mess up ना हो एक दूसरे के साथ. All right, and as you can see after every row there is a line change because pattern में आपका line change हो रहा है. तो लाइन चेंज करने के लिए कर्सर को हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा. फॉर दिस हम एक कोड यूज़ करते हैं, दैट इज system.out.println. दिस इज अ लाइन चेंज कोड एंड आफ्टर दैट वी विल क्लोज द रो लूप एंड देन मैथड ब्रैकेट एंड देन क्लास ब्रैकेट. नाउ स्टूडेंट यू मस्ट अंडरस्टैंड, अगर आपको रो कॉलम नहीं पता है, दैट मीन्स द रो आर n नंबर ऑफ रोज या n नंबर ऑफ कॉलम्स, तो आप लूप को 1 से लेके उस नंबर तक चलाएंगे. ठीक है, यहाँ पे हमने प्री डिफाइन लिया, मोस्टली प्री डिफाइन ही पूछा जाता है, बट इन केस प्री डिफाइन नहीं पूछा जा रहा है, यूज़र डिफाइन पूछा जा रहा है, तो बस जहाँ पे हमने 4 ले रखा है आप उसकी जगह वैल्यूज़ को चेंज कर लीजिएगा. ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैटर्न विच इज़ राइट एंगल ट्राइंगल पैटर्न. बिल्कुल सेम राइट एंगल ट्राइंगल प्रीवियस भी था, ये भी था. इसमें चेंज क्या है, एज यू कैन सी द वैल्यूज़ आर चेंज ओवर एयर. In previous pattern we have 1, 1, 2, then 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, like, but here what we have 1, then 2, 2, then 3, 3, then 4, 4. These are the very basic. आपने क्लास 9th में आराम से पढ़े होंगे तो बोर्ड्स के स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट कन्फ्यूजन बस पैटर्न को फॉर्मेशन में आता है. करना क्या है, इस रो में अगर आप देखेंगे तो
आपकी कॉलम की वैल्यू ना प्रिंट होके रोज की वैल्यू प्रिंट हो रही है। अगर फर्स्ट प्रिंट हो रहा है 1 तो वो फर्स्ट रो है, सेकंड में 2 प्रिंट हो रहा है, कॉलम दोनों कॉलम्स में 2 प्रिंट हो रहा है, मतलब वो रो नंबर 2 है। एंड देन 3 प्रिंट हो रहा है तो यानी वो रो नंबर 3 है। देन 4 प्रिंट हो रहा है, वो रो नंबर 4 है। सो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ भी चेंज नहीं है। सेम क्लास नेम से स्टार्ट करेंगे, देन मेन मेथड, आफ्टर दैट हम रो का लूप रन करेंगे। फॉर द रो के लूप के लिए वही 1 से लेके लेस देन इक्वल टू 4। आप में 5 6 होते हैं तो आप अकॉर्डिंगली उसके इंक्रीज कर सकते हैं, और प्री डिफाइन है तो अकॉर्डिंगली आप वैल्यू भी पास कर सकते हैं। इनसाइड ऑफ द रो लूप वी विल रन द कॉलम लूप, एंड इन दिस कॉलम लूप वी आर गोइंग टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ आई, बिकॉज हमारे पैटर्न में जो वैल्यू प्रिंट हो रही है वो रो की वैल्यू प्रिंट, एंड रो की वैल्यू कौन कंसिस्ट कर रहा है, द वैल्यू ऑफ रो इज कंसिस्टेड बाय आई वेरिएबल। ऑल राइट, सो जे का लूप चलाएंगे, जे इज इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू आई, बिकॉज फॉर्मेशन एकदम सेम है, बस वैल्यू जो प्रिंट हो रही है वो डिफरेंट है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल नहीं लगाएंगे, लाइन चेंज नहीं, क्योंकि हमें एक सिंगल लाइन में वैल्यूज आ रही हैं। फर्स्ट प्रोग्राम में भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ एल नहीं लगेगा, एल लगेगा तो वैल्यू आपकी सेकेंड लाइन में आ जाएगी, तो फिर आपका पैटर्न का जो शेप है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। ऑलराइट, आप चाहें तो प्रैक्टिस के लिए एक बार एल लगा के भी चेक कर सकते हैं कि कितना चेंज आता है। छोटा सा कोड में वेरिएशन से आपका पैटर्न चेंज हो जाएगा। नाउ एंड देन इसके बाद आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन देंगे। जब आपकी कंप्लीट लाइन प्रिंट हो जाएगी तब वो लाइन चेंज करें, मीन जितनी वैल्यूज़ आप चाहती हैं एक पर्टिकुलर लाइन में वो प्रिंट हो, देन वैल्यू चेंज हो। एंड उसके बाद आप रो का ब्रैकेट बंद कर देंगे, मेथड का, एंड एट लास्ट क्लास ब्रैकेट। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके लिए मैंने आपको ये दोनों बेसिक प्रोग्राम प्रैक्टिस कराया, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न ओवर हियर, फ्लॉयड ट्राइंगल। कॉमनली आस्क इन द आईसीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 3 to 4 टाइम्स आ भी चुका है, ठीक है। और इसको बनाना भी बहुत आसान है, ऐसा कोई डिफ़िकल्ट नहीं। बिल्कुल जो मैंने आपको पीछे 2 पैटर्न में बेसिक सिखाया है उसी बेसिक में लिटिल सा मॉड्यूलेशन करना है, एंड देन आप आराम से बनाए। एज यू कैन सी द पैटर्न इज़ कम्प्लीटली राइट एंगल ट्राइंगल, कोई डाउट नहीं है, एक ही जैसा। देखिए 1, फिर 2 वैल्यू, सेकेंड रो में फिर 3 वैल्यू, देन 4 वैल्यू। दैट मीन्स ये जो पैटर्न हो रहा है इसमें भी आई की वैल्यू जे पे डिपेंड है, बट एक छोटा सा डिफरेंट है, यहाँ ना तो आई प्रिंट हो रहा है ना तो जे प्रिंट हो रहा है। मीन्स आई प्रिंट होता तो 1 2 2 3 3 4 4 आता, जे प्रिंट होता तो 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 प्रिंट होता। बट इन दिस केस क्या हो रहा है, हर बार वैल्यू प्रिंट होके अपडेट होके प्रिंट हो रही है, मतलब पहले 1 फिर 2 फिर 3। कभी कभी ये ऐसे भी आ सकता है कि 5 के बाद फिर 10 के बाद फिर 20 के बाद 15, 10 20 के बाद 40, मीन्स किसी भी टाइप से दे सकते हैं। तो ये कॉमन है, इसमें सिंगल 1 वैल्यू अपडेट हो रही है, इसके मल्टीपल वर्जन है, ठीक है, बट ये बहुत कॉमन वर्जन है। एज यू कैन सी इस पैटर्न में भी नंबर ऑफ रो 4 है, नंबर ऑफ कॉलम वे में। तो फॉर्मेशन देख लेते हैं, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते हैं। हेयर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे क्लास नेम, देन मेन मैथड, एंड देन इसके बाद एक की वेरिएबल। जो की वेरिएबल है दैट इज़ के ओवर हियर, जिसकी वैल्यू प्रिंट होगी और हर बार प्रिंट होने के बाद अपडेट होगी, बिकॉज जो नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट होनी है वो अपडेटेड वैल्यू प्रिंट होनी है। पहले मत अपडेट करिएगा, प्रिंट करने के बाद अपडेट करिएगा। ऑलराइट, सो वी विल रन द वेरी बेसिक लूप, दैट इज अ रो कॉलम लूप जो चलता है, आपका रो का लूप चलता है, दैट वैल्यू ऑफ आई लेस देन इक्वल टू 4। ऑल राइट, एंड आई प्लस 1 एज यूजल। आप देख रहे हैं कि 4 रोज थी इसमें, तो हमने आई की वैल्यू 1 से लेके 4 तक रन करा दी। इनसाइड दिस लूप वी विल रन द कॉलम लूप। एज यू कैन सी नंबर ऑफ कॉलम्स भी 4 थे, सो वी विल रन द वैल्यू ऑफ J1 लेस देन इक्वल टू आई, जो कि 4 जो थे वो डिपेंड कर रहे थे बराबर किस पे, आपके आई पे डिपेंड कर रहे थे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट व्हाट यू आर गोइंग टू बी प्रिंट ओवर हियर, ना तो आई प्रिंट कर रहे हैं, जे प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ प्रिंट कर रहे हैं द की वेरिएबल विच इज़ के की वैल्यू प्रिंट करेंगे। आफ्टर प्रिंट के बाद उसको अपग्रेड करेंगे, दैट इज़ के प्लस प्लस। ऑल राइट, और जब तक ये पूरा प्रोसेस रन करेगा इनसाइड इसका लूप बंद हो जाएगा, एंड देन बट ऑब्वियस है जैसा हमें पुराने लूप में किया है, वैल्यू अपडेट करनी है। फॉर दिस लाइन चेंज करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एंड देन इसके बाद आप रो का ब्रैकेट बंद कर देंगे, मेथड का ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एट लास्ट पैटर्न का ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो दिस इज़ द वेरी बेसिक 3 program they are definitely going to ask in your board examination. And thank you so much for watching this video, and stay safe, stay fit.